Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lesson. Yes, that is new lesson and we will be doing with the zoology part now, because the last 4 lessons that we are left with is all about zoology, animal related. So in that 3 of the important lessons are of the human physiology. अपने बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो हमें देखना है. तो उस सीरीज में ये 3 लेसन जो इस सिलेबस में 11th स्टैंडर्ड में, that is the human nutrition, second is the excretion and osmoregulation, and third one is the skeleton and movement. ठीक है, so in that we'll be starting with first with the human nutrition, which is the most important of one of the life processes which takes place in our body, that is the system which regulates the nutrients, that is the digestive system. The food that we eat, from that we have to derive the necessary nutrients and then we have to supply to the body so that each and every cell can work. So for that reason, this is one of the most important what you can say, the body system that we need to study. Even the modern science today accepts that 80 to 85% of the diseases that human face is basically via the digestive system. मतलब जो डिजीज की शुरुआत होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से शुरू होती है. बिकॉज सी normally a pathogen can enter in our body, means when a pathogen can enter in our body, then only it can cause any harm to us. If it's on the surface, it's not that much harmful, but unless and until it gets inside the body, it doesn't cause any harm. Now normally speaking, what are the entry points from where a pathogen can enter? So these are the natural openings that are present in our body: the eyes, the ears, the nose, the mouth, the anus, and the urinary opening. Now normally all other things have some or the other protective mechanism, but and means the two things which we the openings through which we can rather we cannot close them is obviously our nose and our mouth. Mouth can be rather the digestive tract. With the help of mouth we can close it, but we can't stop eating because eating is necessary for us to nourish our body. And obviously what food we eat, that determines the quality. Hence 80% to 85% of the diseases that we actually incur in our day in our lives, that is basically due to the digestive tract. If the digestive tract is working properly, you're away from majority of the diseases. But if your digestive tract is not working properly, you are inviting many diseases. Okay, so we'll see this all the most important system that is in our body. But first, before we study what diseases it can cause or what are the side effects of some or the other process, if some process goes wrong in the digestive tract, first we need to study what is its normal functioning. देखो, बॉडी की फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, 2 इंपॉर्टेंट तरीकों से पढ़ते हैं. पहले तो उसका नॉर्मल वर्किंग सीख लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता चलेगा बीमारी क्या है. अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है मतलब ये डिजीज है. समझ में आ रहा है? So we'll first look into this. So we'll start with this. So as the topic's name suggests, is human nutrition. So first of all, what do you mean by nutrition? So there are 2 definitions, one which is normalcy and other which is given by the WHO, that is World Health Organization. So there some of the processes by which organism consume and utilizes food is known as nutrition. तो वो सारे processes जिससे खाना हम कंज्यूम करते हैं वो यूटिलाइज भी होता है, बॉडी उसका इस्तेमाल करती है, तो उन प्रोसेसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. या कंज्यूम फूड कंसीडरिंग द डाइटरी नीड्स ऑफ द बॉडी, या वो चीजें खाना. न्यूट्रिशन का मतलब वो चीजें खाना, वो फूड सब्सटेंसेस खाना जो शरीर के लिए जरूरी है, अपने मन के लिए या अपने जबान के लिए जो अच्छा है वो हमें नहीं खाना है. The things which are necessary for body working, that we need to eat. मतलब किसी को केक बड़ा पसंद है, ठीक है, but it's actually more damaging for our body than it जो उसका कोई good effect है. ठीक है, किसी को तली हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है, किसी को स्पाइसी चीजें. सो वही बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं है, तुम्हारे शरीर को नरिश करने के लिए क्या चाहिए वो ज्यादा जरूरी है. सो यू नीड टू ईट those things which will nourish your body, not your what you can say mind or soul, because
एक्चुअली वो तो कुछ उस न्यूट्रिशन का उधर कुछ जाने वाला है नहीं. द फूड वी ईट डजंट रीच द सोल. ऑब्वियसली सोल मतलब अभी थोड़ा ये थोड़ा अध्यात्म टाइप हो जाएगा, बट इट डजंट नीड एनी फूड. द फूड इज नीडेड फॉर अ बॉडी टू सर्वाइव. ठीक है, एंड दैट फूड दैट वी ईट इट मस्ट बी नरिशिंग टू द बॉडी. ठीक है, इट शुड नॉट बी ओवरलोडिंग इट or poisoning it. So that's why we must understand this. This is a very important thing. Nutrition लोगों को लगता है सिर्फ खाना. Majority people don't even think कि मतलब ये सब चीजें मतलब खाने की चीजें क्या है, कितनी खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए. लोगों को पेट भरने से मतलब है, but that is not the way we should eat. We should eat just to nourish the body. मतलब शरीर के लिए इतना जरूरी इतना ही खाओ. एक्सेस खाओगे यू आर ओवरलोडिंग योर बॉडी, यू आर पॉइजनिंग द बॉडी. कम खाओगे यू आर अंडर नरिशिंग योर बॉडी. सो हमें ज्यादा भी नहीं खाना है, हमें कम भी नहीं खाना है, इसलिए द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट आता है. सो दैट इज न्यूट्रिशन. सो WHO की डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से लर्न करेंगे. सो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, लेट्स सी दैट. सो दीज आर द 5 स्टेजेस इन विच वी डिराइव न्यूट्रिशन. पहला तो खाना पड़ेगा. इंजेशन इज मींस द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑफ द फूड थ्रू माउथ, ऑब्वियसली इज नोन एज इंजेशन. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. खाना तो पड़ेगा, सिर्फ देखने से थोड़ी नरिशमेंट आने वाला है. ठीक है, मतलब हेल्दी चीजें देख रहे हो, वाह इससे तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं क्या? नहीं. यू हैव टू टेक इन फर्स्ट. सेकंड, then body will digest it. Now what is digestion? Definition of digestion: it is converting the complex organic non-absorbable substances. ठीक है, this is the conversion of complex organic non-absorbable substances into something simple, inorganic और in some cases organic भी चल जाता है. In an absorbable form is generally called as digestion. Obviously रोटी में खाता हूँ, रोटी क्या वैसे मेरे ब्लड में जाती है क्या जो घूमेगी? नहीं. Simply I need to digest it. I have to break it down in such simple molecules so that they can be absorbed in our bloodstream and then it can be circulated in the body to the respective cells. So digestion is a process. It's a process of converting complex organic non-absorbable substances into something which is simple, organic or inorganic, and absorbable form so that it can be used by the body to generate its nourishment. So that is digestion. Third one is absorption. अब जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो इसको खींचना भी पड़ेगा ना ब्लड में. So that is absorption. So the process of taking in or the process of what you can say taking in of the simple organic absorbable food substances from the GIT tract into the bloodstream is known as the absorption. Then what is assimilation? So अब ये जो absorbed nutrients खून में आए हैं, ये जब सेल के पास जाता है तो सेल इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ाता है. मतलब the simple nutrients are used by the cell to produce complex carbohydrates, complex proteins, lipids. So that is known as assimilation, which will lead to the growth of the cell. So that is known as assimilation. And finally, इतना करने के बाद भी जो खाना है उसमें से कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो वेस्ट होता है या जिससे कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते. सो जो फीकल मैटर जिसे अपन बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, तो जो अपनी बॉडी शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से एक्सपेल करने के एक्ट को हम ईजेशन कहते हैं. देखो बहुत बच्चे एक्सक्रीशन में गड़बड़ करते हैं. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट बट दैट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट. मतलब सादी भाषा में पेशाब जो हम करते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. जो हम मतलब बोल सकते हैं ना कि इजेशन मींस फीकल स्टूल मैटर. ठीक है, फीकल मैटर जब हम डेफिकेट करते हैं उसे हम इजेशन कहते हैं. वी नेवर कॉल दैट एज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे शरीर का नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी से फिल्टर होके निकलता है. किडनी से जो कचरा फिल्टर होके जो बॉडी बाहर फेंकती है उसे एक्सक्रीशन कहना है.
मतलब पेशाब को उसे हम एक्सक्रीशन बोलेंगे, बट फीकल मैटर के रिमूवल को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट है, उसे बाहर निकालना, दैट इज ईजेशन, या इसको एक और वर्ड है डेफिकेशन। वो तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट को डेफिकेशन कहते हैं। सो ये गड़बड़ मत करो। काफी बच्चों को लगता है एक्सक्रीशन, उसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है, बट दैट इज रॉन्ग। सो दीज आर दी प्रोसेसेस बाय विच हमें नरिशमेंट मिलता है। सो पहले खाना खाना पड़ेगा, फिर उसे पचाना पड़ेगा, फिर उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करके उसको सेल्स के पास दिया जाएगा, सेल्स उसे अपनी जरूरत की बायोमोलिक्यूल्स बना लेंगे, तो उसे हम एसिमिलेशन कहेंगे, और ये प्रोसेस के होने के बाद जो भी कचरा बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन न्यूट्रिशन। अगर तुम खुद सोचो, सब कुछ यहाँ तक ठीक चल रहा है, लास्ट वाला भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी को अगर मोशंस ही नहीं हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इवन दैट इज अ साइन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसेस अच्छे से जब रन होता है बॉडी में, तो हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन कहते हैं, या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हम ऐसा बोलते हैं। सो इन चीजों में कहीं पे भी गड़बड़ होगी, इट विल अफेक्ट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डाइजेशन में गड़बड़ हो रही है तो ऑब्वियसली खाने को अगर बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पाए, आगे का पूरा ठप पड़ जाएगा, बाकी ऑर्गन्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, सो दे विल वर्क एब्रप्टली, एंड फिर ये चेन जैसा है, ठीक है। चेन में कैसे कड़ियां होती है, अगर एक कड़ी निकाल दो तो आगे की कड़ी हैम्पर होगी। सो इस तरीके से है, न्यूट्रिशन की हर एक स्टेज अच्छे से काम करे, तब बॉडी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स डिराइव करती है, शरीर को नरिशमेंट मिलेगा, शरीर ग्रो करेगा इन दैट वे। सबको समझा है? सो दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर अंडर न्यूट्रिशन। अब इसका मकसद क्या है? ऑब्वियसली मकसद तो है कि इन बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में बनाना, एंड देन उन सिंपल फॉर्म से जब सेल में जाएंगे तो उनसे वापस ये चीजें बना लेना, बट जो बॉडी को चाहिए, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये तीनों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, बिकॉज मैक्सिमम सेल भी बोलो और शरीर भी बोलो, इन्हीं के भरोसे चल रहा है। कुछ अमाउंट में पर हमें मिनरल, विटामिन्स भी चाहिए एंड वाटर, ठीक है। सो इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स तो बॉडी बना लेगी, ठीक है, दे आर आल्सो बायोमोलिक्यूल्स, बट हम कभी न्यूक्लिक एसिड समझकर कुछ खाते नहीं है। हम जो भी फूड स्टफ्स खाते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स बोलो या नॉन वेज बोलो, दे आर एक्चुअली अगेन सेल्स, उनके अंदर भी डीएनए होगा, बॉडी उसे भी ब्रेक डाउन करेगी एंड इट विल कन्वर्ट दोस न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, अब सबको पता है वो क्या है, and then body will again form new nucleotides and nucleosides for our body itself to produce new cells. So वैसे देखा है तो न्यूट्रिएंट्स हम इन्हीं से डिराइव होते हैं। मिनरल्स, विटामिन्स, दे हेल्प इन मेनी वेज, ठीक है, एंजाइम एक्टिवेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वी नो 65 to 70% ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट वाटर, तो सिंपल सी बात है, वो भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। So these are the biomolecules that our body requires, ठीक है, जिसमें से मिनरल और वाटर ये इनऑर्गेनिक है, विटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मींस कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। मिनरल्स एंड वाटर ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में गिने जाते हैं, ठीक है। तो होप सो इंट्रोडक्शन सबको समझा है। आज अपन सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है वो देखेंगे, एंड फिर अगले वीडियो से एक एक पार्ट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू, ठीक है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टडी करते वक्त दो हिस्सों में पढ़ा जाता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले वीडियो में हम पहले पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार देख लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन इन दैट सेंस। सो जनरली व्हेन वी स्टडी इट, वी स्टडी इट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो कंटिन्यूअस ट्यूब है, कैनाल, जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म होगा, ठीक है। एंड इसको मदद करते हैं कुछ असेसरी ग्लैंड्स, जो डायरेक्टली ट्रैक्ट के हिस्से नहीं है, बट दे pour the secretion in the tract to bring about the digestion. So शुरुआत अगर हम लाइन से जाए तो शुरुआत होती है माउथ से, ठीक है। माउथ के बाद गले वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं फैरिंग्स, फिर खाना फैरिंग्स से जाता है ईसोफेगस, which we normally called as a food pipe, ठीक है, ईसोफेगस।
फिर वहां से जाएगा स्टमक में, फिर वहां से जाएगा इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, जिसमें पहले जाएगा स्मॉल के पास, बाद में जाएगा लार्ज के पास, एंड फाइनली इट विल रीच द रेक्टम, एंड जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। सो ये पूरा ट्रैक है, लाइन से माउथ से शुरू होके खत्म होता है, द आउटर ओपनिंग ऑन द लोअर एंड, दैट इज एनस। इसको मदद करते हैं। अब खाना मतलब फिजिकली खाना इन जगहों में से होता हुआ जाएगा, पर एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से, तो 3 है, दैट इज दी सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड्स पता है तुम्हें क्या होते हैं, लिवर जो शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन इज दी पैनक्रियास। सो ये ग्लैंड्स में से खाना कभी नहीं गुजरता, बट ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे अपने सिक्रीशंस छोड़ देंगे, सो दैट खाना पचाने में ये मदद कर दे। सो टेक्निकली वी हैव टू स्टडी दीज एवरीथिंग इन डिटेल। सो हम हर ऑर्गन के 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक तो एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिस्से का स्ट्रक्चर, एंड दूसरा वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो दूसरा वो काम कैसे करता है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबकी एनाटॉमी स्टडी कर लेंगे, फिर सबकी हम लोग फिजियोलॉजी, फिर एक साथ देखेंगे माउथ से लेके रेक्टम तक कैसे पूरा खाना पचता है वगैरह वगैरह। होप सो गाइस सबको ये इंट्रोडक्शन समझा है, न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से क्या डिराइव करते हैं, कौन से बायोमोलिक्यूल शरीर हम पा सकते हैं, प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है। सो दीज आर द पार्ट्स। अगले वीडियो में हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज माउथ, ठीक है, और द बकल कैविटी जो है वो देखेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन hit the like button, subscribe the channel, and see you later guys.